क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स्थ पार्ट। 3 unbiased coins are tossed. अब यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, टॉसिंग ऑफ 3 coins. Find the probability of getting one head and one tail. अब यहाँ पे आपको वर्ड एंड बोला है, वन हेड एंड वन टेल. इसका मतलब क्या है, आपने वो वाले सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें हेड भी हो, वन हेड हो और वन टेल भी हो. मींस ये वाली चीजें मस्ट क्लियर. तो हमने क्या लिया, इवेंट को हम ई ले लेते हैं. तो वो वाली इवेंट में लेट ई इज इक्वल टू इवेंट दैट outcome has one H and one T. तो आपके पास E के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 3 पॉइंट्स है, ठीक है. 2 हेड्स हो सकते हैं H H T, इसकी पॉसिबिलिटीज और क्या क्या है, H T H देन T H H. क्लियर. अब इसमें एक T H का कॉम्बिनेशन है सब में. उसके बाद 2 हेड्स की बजाय वन हेड भी हो सकता है, 2 टेल्स H T T T H T देन H T T H. बस यही केसेस होंगे. तीनों टेल्स नहीं हो सकते. अगर T T केस हो गया T T T तो इसमें 1 H मिसिंग है. क्लियर. अगर हम H H ले लेते हैं उसमें 1 T मिसिंग है. तो इन दोनों को छोड़ के आपके पास कौन से कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 सैंपल पॉइंट्स हो. सो ME is equal to 6 number of cases in favor. और आपको पता है टॉसिंग ऑफ 3 कॉइंस है तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे. तो NS is equal to 2 raised to 3, that is 8. तो आपके पास probability of getting that is 1 head and 1 tail कितनी हो जाएगी, 6/8. इसको जब आप कट करोगे you will get. I hope you all have done this question. Next was question number 8. Question number 8 third part जो मुझे लगता है मुझे आपको राइट करना चाहिए. First 2 parts were very simple. In third part we are having 5 red, 8 white and 4 green marbles in a box. Find the probability of not getting a green marble. So there are 2 ways. या तो आप पहले probability of getting green marble निकाल लो. वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 over total number of cases कितने हो गए, 70. It is 4 over 70. ये probability of getting green marble होगी. Probability of not getting green marble is equal to 1 minus probability of getting green marble. So it will be 1 minus 4 over 17, that is 13 over 17. और what is the second way out? अगर ग्रीन नहीं चाहिए आपको तो इन दोनों का टोटल कर सकते हो. क्लियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल इक्वल टू या तो वो रेड होगा या होगा व्हाइट. तो इन दोनों का टोटल दैट इज 13 over 17. बोथ मेथड्स आर इक्वली राइट. Question number 9. A bag contains 9 discs. Total 9 number of discs हैं, of which 4 are red, 3 are blue, 4 red, 3 blue, and 2 yellow. Total कितनी होगी, 9. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will. All other parts are simple. Red की निकाल सकते हो, yellow की निकाल सकते हो, blue की निकाल सकते हो, not blue की निकाल सकते हो. Fifth part is either red
और येलो, either red or yellow. So here probability of getting red or yellow. रेड कितने आपके पास 4 है, येलो कितने हैं 2 है, तो पॉसिबल केसेस जो है इन फेवर वो कितने हो गए 4 + 2 6, 6 ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस 9, that is 2/3. Question number 11. If there are 2 children in a family, find the probability that there is at least one boy in the family. Assume that each child is equally likely to be boy or a girl. तो experiment क्या हो गया? Selecting of 2 children in a family. तो आप इसमें sample space में क्या क्या लिख सकते हो? Boy को हम B से डिनोट कर सकते हैं और girl को G से. तो boy को या तो दोनों boy BG या फिर फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल या फिर फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय और बोथ गर्ल्स. Here where B is boy and G is girl. Find the probability that there is at least one boy in the family. At least one boy means आपको event let E is equal to event of at least one boy. तो आपके पास E के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? At least one boy means दोनों boy भी हो सकते हैं और one boy one girl ये भी केस हो सकते हैं, लेकिन दोनों गर्ल्स वाला केस नहीं. So probability of happening the event E is equal to 3/4. Question number 12 is in a single throw of 2 dice, when 2 dice are thrown, number of element. अब experiment क्या होगा? Throwing of 2 dice or 1 die is thrown 2 times, one and the same thing. Clear? So number of elements in the sample space will be. अब इसमें जब हम die थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6. 1 dice के number of outcomes 6. लेकिन जब हम इसको twice करेंगे 2 times, then it will be number of जो इसके sample points हैं that will be 6 raised power 2. That will be 36. Total number of sample points will be 36. Then here you have to find the probability of not getting the same number on both the dice. तो same number क्या क्या होते हैं उसकी possible? Let E is equal to event of same number on both dice. दोनों के सेम नंबर है उसको हमने E ले लिया, ठीक है. तो कितने आउटकम्स होंगे उसके? E will be equal to 1 1 2 2 then 3 3 4 4 5 and then 6 6. So number of elements in E and E is equal to कितने हो गए आपके पास? 6 हो. क्लियर? अब आगे आपकी मर्जी कैसे आपने फॉलो करना है. आप यहाँ से नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ से निकाल सकते हो. 36 में से 6 माइनस कर दिए तो आपके पास कितने रह गए? 30 आउटकम्स रह गए जिनमें इन फेवर होगा इवेंट्स ऑफ गेटिंग नॉट सेम नंबर ऑन बोथ द पॉइंट, और यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E. क्लियर? अब एंड E के एलिमेंट्स ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एंड नॉट E.
उसमें कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स 36 minus 6, that is 30. So probability of getting not E. Not E क्या हो गया? Not getting the same number. 30 over 36. So it is 5 over 6. Second way out क्या है? अगर आपने ऐसे नहीं करना, you can find from here probability of getting E. So it will be 6 over 36. That is 1 by 6. Probability of not getting E तो कितना हो जाएगा? 1 minus 1 by 6. So that is 5 by 6. Now question number 15. Find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. अब आपको सबको पता है leap year is equal to 366 days. और मैथ में एक सिंपल क्वेश्चन आता है हाउ मेनी वीक्स इन अ ईयर, तो हम बोलते हैं 52 वीक्स, ठीक है। तो उसके बाद कुछ डेज भी बच जाते हैं। अगर 365 डेज है तो 1 डे एक्स्ट्रा होता है, 1 ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, पता होगा ना ये सबको। अगर आपका बर्थडे आज ट्यूसडे, इस ईयर ट्यूसडे को है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वेडनेसडे, ठीक है। अगर लीप ईयर है तो गैप 2 डेज का पड़ जाता है। कैसे? 366 इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द नंबर ऑफ वीक्स। So here you will get 366 is equal to 52 into 7 plus 2. आपके पास 2 days remaining रह जाएंगे। क्लियर? करके देख लो बेशक। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 52 वीक्स। 52 वीक्स कंप्लीट है। अब 53 वीक जो है वो इन 2 दिनों में डिसाइड होगा कि वो दिन कितनी टाइम्स आ रहा है। क्लियर? वो 2 डेज में वो एक दिन आता है या 2 दिन आता है। अब रिमेनिंग 2 डेज जो है, ठीक है, लेट E be the event of 2 successive or 2 consecutive days of a। तो E में क्या क्या हो सकता है? ठीक है, we are writing here first letter। या तो E क्या हो सकता है? 2 डेज हैं ये, या तो वो संडे और मंडे हो सकता है कंसेक्टिवली, या फिर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, देन सैटरडे एंड संडे। ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो थर्ड है 7, ये तो यहाँ पे तो 7 संडे हो गए ना, कि जो नेक्स्ट है वो भी संडे होगा, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे क्या हो जाएगी? हाउ मेनी? एक तो यहाँ पे संडे मंडे आ रहा है और यहाँ पे सैटरडे संडे आ रहा है, सो इट विल बी 2 over 7। क्लियर? अब 52 तो पहले से ही है हमारे पास, 52 संडे पहले से ही है ना, ठीक है। तो उनमें से नेक्स्ट 2 डेज जो है उनमें से संडे हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 by 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज in a leap year is equal to 2 by 7. In this question, A and B are two mutually exclusive events. Mutually exclusive का मतलब है A intersection B is equal to 5. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। PA is equal to 0.5 and P not B is equal to
0.6 फाइंड पी ए और बी। पी ए और बी, अब हमें पता है फॉर्मूला पी ए और बी में क्या आता है, और है तो इट इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। यू नो द मैथड, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5 है, एम्प्टी सेट है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी, इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। आउटकम्स इन फेवर ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हियर इट विल बी पी ए प्लस पी बी, बट हियर यू आर गिवन पी बी बार, ठीक, तो पी बी बार की वैल्यू आपने पी बी की वैल्यू निकालनी है, उसको क्या लिखोगे, पी ए प्लस 1 माइनस पी नॉट, लिख सकते हैं ऐसे। वैल्यू ऑफ पी ए 0.5 प्लस 1 माइनस 0.6, फाइंड आउट दिस वैल्यू। Yes, here two students, Rajesh and Vijay, appeared in the examination. The probability that Rajesh will qualify the examination is 0.5. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं left, sorry it is 0.05. तो हम events को denote कर लेते हैं let R is equal to event that Rajesh qualify एग्जाम, उसको हमने आर लिख लिया। प्रोबेबिलिटी दैट राजेश विल क्वालिफाई द एग्जाम, इट इज 0.05 and Vijay will qualify the examination is 0.1. So again let V is equal to event that Vijay qualify the exam. So here probability that Vijay qualify the exam is 0.1. The probability of both will qualify the examination is 0.02. Both का मतलब है P R intersection P, it is equal to 0.02. Find the probability that Rajesh and Vijay will not qualify the examination. Probability find out करनी है किसकी, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, you can draw the figure like this. इसमें एक R सेट ले लिया और एक ले लिया B, और ये आपके पास सैंपल स्पेस हो गई, इसमें ये R हो गया और ये B हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, R की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट Rajesh and Vijay will not qualify the examination. Probability first part. Rajesh and Vijay will not qualify the exam. ठीक है, R dash and that is intersection B dash. तो क्या होगा, R dash करोगे तो इसको छोड़ के अब आपने R और B है, R डैश आपके पास ये हो गया, R को छोड़ दिया, क्लियर। B डैश आपके पास क्या हो गया, अभी ये आपके पास R था, B को छोड़ दिया, जो उसमें डबल B नहीं आएगा इसमें, ठीक है, B को छोड़ दिया,
जो इसमें डबल शेडेड पोर्शन है, डबल शेडेड पोर्शन क्या हो गया, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये बाकी का स्पेस था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू मस्ट हैव डन डी मॉर्गन लॉ। उसमें क्या होता है, इट विल बी P R dash intersection B dash will be R union B dash, R union B dash। अब इसकी वैल्यू आपने निकाली है, यू कैन सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 1, so it is equal to 1 minus P R union B। apply the formula 1 minus P R union B, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P R plus P B minus P R intersection B। So it is equal to 1 minus PR, that is 0.05 plus PV 0.1 minus 0.02। समझिए आपके पास वैल्यू 1 माइनस, अब यहाँ पे 0.05 प्लस 0, आपके पास हो गया 0.0, इसमें से माइनस कर दिया 0.03, so 0.13, subtract the two, 0.87। Now second part में आपको बोला है at least one of them will not qualify the exam। So here it is R dash union B dash, R dash union B dash। जब हम R dash लेते हैं, R dash में क्या आ जाएगा, R को छोड़ के सारे पॉइंट्स, ठीक है। यूनियन B dash, B dash में क्या है, B को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स,